Okay. Hello, am I audible? Yes, yes. Okay. Thank you, Kaustubh. Good morning, all. My name is Yugal Bharsare, lecturer in NIT Polytechnic Nagpur and the member of IIC NIT Poly. Welcomes you all in today's Impact Lecture. In today's Impact Lecture series, organized by Institutions of Innovation Council of NIT Polytechnic, works to foster the vibrant local innovation ecosystem. IIC focus on to nurture the students as they can able to make some innovations and then start their startup from that. For that, we conduct various innovations and entrepreneurship related activities throughout the year. We organize various workshops, seminar, interaction with the entrepreneurs, investors, professionals, and create a mentor pool for student innovators. We also organize idea competitions, mini challenges, etc., with the involvement of industries, and this impact lecture is one of them. As all of you know, this is in this impact lecture series, we are going to conduct 4 sessions. In the 2 sessions, in 2 days on different topics by the renowned professionals. Before going to start, I would like to call our president of IIC Polytechnic, Professor Ritesh Harode, to enlighten us with their golden words. Harode, sir. Good morning, everyone. I am Professor Ritesh Harode from NIT Polytechnic Nagpur. Today we are organizing this IIC Impact Series lecture. In this series, we are going to have 4 lectures by renowned professionals from academics, industries, and other places. Our institution innovation cell, we organize such many programs under this platform for the students and our alumni. Our basic focus is that we want to foster the culture of innovation within our institute, so that a student can innovate something, and that particular innovation can be reached to the market. We are very focused on providing a platform so that whatever the product or project a student is developing, that product should be developed, and it should be developed as a product, and it should reach a market. For that, we are going to conduct such sessions. We are going to support the student, and for that we are having innovation cell. Then we are supporting for intellectual property rights also. So in that way we are working. Here? Can you hear me, everyone? Yes, sir. Yes, your voice is coming, sir. Yeah. Okay. So in this, we are continuously organizing such program, and we are having the support of lots of people from the industry as well. So in this series, we are organizing this 2-day program on Impact Series lecture. I'm very thankful to Amol Pusatkar sir for having a first session, and without wasting any time, I ask Yuval sir to please proceed further. Thank you, sir. Now I would like to introduce our today's speaker, Mr. Amol Pusatkar, sir. Sir has completed their BTech and MBA and has 23 years of rich industrial experience with various companies like Tata Aerospace Limited, Mahindra & Mahindra Limited, Saint Gobain's, Abrasive Limited, KEC International, and many more. He participated in panel discussions on various TV channels like Zee TV, Zee News, ABP Mazda, TV9, Marathi, G24 Tas, and Akashvani Nagpur. Sir was a speaker in various national and international conferences. He was a guest lecturer in top colleges of the city and central India. He has expertise in many industrial and behavioral topics. Sir is an excellent orator. He is a column writer in newspaper, a trainer, and a career guide. So without wasting any time, I would like to hand over the session to our guest, our speaker, Mr. Amol Pusatkar sir, to start the session. Sir, over to you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, Ritesh, sir.
So dear friends, today we have the topic that how to convert innovative ideas or innovations into startups. But before entering into the subject, what is innovation? A question may arise in your mind that what is innovation? Innovation is everything new. Every new idea can be an innovation, but it can be any idea can be innovative, but every innovative idea cannot be feasible to get implemented. So every innovative idea should get first rectified with various clauses that is it feasible, is it practicable, is it implementable. So there are a lot many ideas which can be innovative. यानी बहुत सारी आइडियाज ऐसी हो सकती है कि जो इनोवेटिव है, लेकिन सारी इनोवेटिव आइडियाज ये हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण ऐसा है कि प्रत्येक हर जो आइडिया है, वो आइडिया ऐसी नहीं है कि वो प्रैक्टिकेबल हो, ऐसी भी नहीं है कि वो फिजिबल हो, ऐसी भी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करने के लायक हो। इसलिए हमारी बहुत सारी आइडियाज है। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आइडियाज को कैसे जनरेट किया जाता है। तो उसके लिए एक टूल है, उसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग। विद द हेल्प ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग यू कैन जनरेट नंबर ऑफ आइडियाज। उसके लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू फॉर्म अ ग्रुप। आपको एक ग्रुप फॉर्म करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्कस ऑन योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स। यानी आप लोगों को एक ग्रुप फॉर्म करना है, और कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपके सामने आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को लेना चाहिए। एक रजिस्टर भी रखना चाहिए जिसमें हर मेंबर ने क्या आइडिया दी, क्या सॉल्यूशन दिया, वो लिखना चाहिए। अब इसमें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी आइडिया, किसी ने भी दी हुई कोई भी आइडिया बेकार नहीं है। यानी कोई भी अगर आपको कोई आइडिया देता है तो उसको लिख लीजिए। जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो यही है कि पहले आप एक ग्रुप बनाइए, एक साथ बैठिए, प्रॉब्लम्स को लीजिए और उसके ऊपर सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए। और जो सॉल्यूशन हर कोई बताता है, उस प्रत्येक हर सॉल्यूशन को हमें लिखना है। अब उससे ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि प्रॉब्लम कैसे चुनना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर शुड बी अ प्रॉब्लम बैंक इन एवरी इंडस्ट्री। हर कंपनी में एक प्रॉब्लम बैंक रहता है। तो प्रॉब्लम बैंक जो रहता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रॉब्लम लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेंट शॉप है तो पेंट शॉप में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो वहां पर लिखा रहता है। पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एनवायरमेंट के कारण क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों के निग्लिजेंस के कारण क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पेंटर्स के कारण क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पेंट मिक्सिंग बराबर नहीं हुआ उसके कारण क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स रिटन इन द प्रॉब्लम बैंक। तो इनोवेटिव आइडियाज के लिए क्या है, एक तो आपका आइडियाज इनोवेटिव होना चाहिए या फिर आपका सोल्यूशन इनोवेटिव होना चाहिए। बहुत बार क्या रहता है, हमारे पास में प्रॉब्लम ऑलरेडी पड़े हुए रहते हैं, और आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और उनको पूछेंगे कि सर आपके पास प्रॉब्लम है क्या, तो उनके पास में ढेर सारे प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम बैंक में मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी स्टार्टअप करना है या आपको कुछ भी नया चालू करना है, तो आपके पास में दो रास्ते हैं। एक तो आप नई आइडिया निकालिए नई आइडिया आप निकालिए, ढूंढिए, और उस आइडिया के हिसाब से नया सॉल्यूशन भी दीजिए। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है कि आप इंडस्ट्री को कांटेक्ट कीजिए, उनके पास में जो प्रॉब्लम बैंक्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव सॉल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं, वो हमें ढूंढना चाहिए। तो प्रॉब्लम बैंक में कैसा रहता है, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ एबीसी एनालिसिस। वहां पर एप्लीकेशन रहता है एबीसी एनालिसिस का। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ए टाइप के प्रॉब्लम, बी टाइप के प्रॉब्लम और सी टाइप के प्रॉब्लम। तो ए टाइप में कौन से प्रॉब्लम आते हैं, जो ऐसे प्रॉब्लम जो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रॉब्लम हमको समझता है, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं ए टाइप में। बी टाइप में कौन से प्रॉब्लम रहते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिसका हमको सॉल्यूशन मालूम है, लेकिन हमें किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की या किसी अदर डिपार्टमेंट की उसमें हेल्प चाहिए, तो उसको कहते हैं बी टाइप के प्रॉब्लम। सी टाइप के प्रॉब्लम कौन से होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका
सॉल्यूशन हमें मालूम है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसके लिए हमें मैनेजमेंट की मदद की आवश्यकता है। तो जिसमें मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो सी टाइप के है, जिसमें किसी अदर डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स चाहिए, अदर डिपार्टमेंट की हेल्प हमको चाहिए, तो वो जो है वो हमको वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमें देखना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन किसी अदर डिपार्टमेंट की हेल्प से हमको मिल सकता है। तो इसको कहते हैं बी टाइप का प्रॉब्लम। और ए टाइप के प्रॉब्लम कौन से है? जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है या हमको मालूम है कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ABC एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप अगर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर इनोवेटिव सॉल्यूशन देंगे और उसके हिसाब से कोई स्टार्टअप चालू करेंगे तो उसको काम जल्दी मिलेगा। अगर कोई नई आइडियाज के ऊपर आप जाते हैं और नया सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा, कस्टमर्स को आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर कस्टमर आपके सामने खड़ा है, उसके हाथ में प्रॉब्लम्स भी है, तो उसके 50 या 100 प्रॉब्लम्स में से अगर 2 प्रॉब्लम का भी आपको हल मालूम है कि ये इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर क्या होगा? आपके सामने कस्टमर खड़ा है, यानी इफ यू गो विथ योर सॉल्यूशन देन यू हैव अ कस्टमर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कस्टमर खड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट होता है और आपका जो स्टार्टअप है वो रन भी करने लगता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट विद द इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट विद द इंडस्ट्री के बाद में सेकंड पॉइंट आपका है कि आस्क देम फॉर द प्रॉब्लम बैंक। थर्ड पॉइंट है कि गो फॉर द प्रॉब्लम्स इन द प्रॉब्लम बैंक। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको अगर वो प्रॉब्लम्स में से किसी प्रॉब्लम को चुनना है, तो कौन सा प्रॉब्लम चुनना चाहिए, यानी हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रॉब्लम बैंक। For this purpose, you have to take the help of ABC analysis. And I told you that A means problems in your range, B means problems which can be solved with the help of other departments, C problems which can be solved with the help of the management. तो ऐसा इस प्रकार से ABC 3 प्रकार के प्रॉब्लम आपके सामने रहते हैं। तो उनमें से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले आप A टाइप के प्रॉब्लम लीजिए जो आपके अंडर में है, आपके रेंज में है, और उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेफिनेटली आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जिसके कारण आपको फटाफट कस्टमर में मिल सकता है। जो प्रॉब्लम एक का है, वो प्रॉब्लम अनेक लोगों का रह सकता है। तो देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, यानी जो सॉल्यूशन हमने एक जगह पर इम्प्लीमेंट किया है, वही सॉल्यूशन हम किसी और जगह पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। तो ये मैंने आपको कहा कि जहां पर प्रॉब्लम है, पहले उसको लेकर सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए, एंड योर सॉल्यूशन शुड बी इनोवेटिव। इनोवेटिव सॉल्यूशन मींस जो पहले किसी ने दिया नहीं है, लेकिन आप अपने आप में वो सॉल्यूशन नया है। तो ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन हमने लोगों के सामने रखना चाहिए। तो ऐसा अगर इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर हम चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें अगर एक स्टार्टअप चालू करना है, तो उसके लिए पहले हमको हमारा नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने से पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, GoDaddy पर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि शिक्षाला.com है, तो शिक्षाला.in भी लेकर रखना पड़ेगा। शिक्षाला इंडिया अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी लेकर रखना पड़ेगा। यानी शिक्षाला से रिलेटेड 2-4 जो आजू बाजू के हैं, उन सबको लेकर रखना पड़ेगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपकी अगर स्टार्टअप आपने शुरू किया, वो स्टार्टअप बड़ा भी हो गया, तो आगे चलकर वो स्टार्टअप जो है वो और बड़ा जब होता है, तो कोई उसका नाम कॉपी ना करे, इसके लिए उसके आजू बाजू के जो नाम है वो आप GoDaddy पर जाकर आप उसको बुक करवा सकते हैं। तो वो करने के बाद में आपको फिर क्या करना है? यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर कंपनी सेक्रेटरी एंड योर CA। तो 2 लोगों का कांटेक्ट आपसे होना बहुत आवश्यक है, एक कंपनी सेक्रेटरी और दूसरा है CA। तो आपको आपकी जो फर्म है उसको आपको रजिस्टर करना है। तो गवर्नमेंट के पास उसका रजिस्टर करना है, और आपका फर्म का नाम रजिस्टर होने के बाद में उसका CA रिलेटेड जो भी काम है वो CA आपको करवा के देगा,
और कंपनी लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी काम है वो कंपनी सेक्रेटरी आपको करवा के देगा। तो उसके बाद में आपको एक ऑफिस की जरूरत होती है। तो आप देखिए कि आपके कितने एम्प्लॉयज रहने वाले हैं, कितने लोगों की आपको जरूरत है, कितने लोगों का स्टाफ आपका रह सकता है, उतना ही बड़ा ऑफिस हमको लेना है। ना कि हम चकाचौंध वाला बड़ा ऑफिस लेंगे और उसका बड़ा सा किराया भी रहेगा, इंटरनेट के भी खर्चे रहेंगे, सिक्योरिटी के भी खर्चे रहेंगे, 24/7 सिक्योरिटी आपको चाहिए रहती है, तो उसके भी खर्चे रहते हैं, इंटरनेट के रहते हैं, क्लाउड के रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे अगर आपके पास में जुड़ गए तो फिर क्या होगा, रेंट प्लस क्लाउड प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस इंटरनेट प्लस टेलीफोन अगर है तो वो, और किसी को अगर मोबाइल्स देना है तो वो, ये सारा कर ये सारे का पूरा जो कुल मिलाकर है वो 1 लाख रुपए तक चला जाएगा। तो हमें ऑफिस उतना ही बड़ा लेना है जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना हमारा स्टाफ रहने वाला है, जितना हमारे पास में काम है, उतना ही स्टाफ हमको लेना है। तो ये हो गया हमारा कंपनी स्टार्टअप का। तो दूसरी बात ऐसी है कि जब हम कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमको देना है, तो ऑल ऑफ ए सडन अगर अगर उसका सोल्यूशन हमारे सामने है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गर्मी हो रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है, मैंने फैन लगाना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन। तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन अगर आपके सामने खड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन को लेकर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको मालूम है कि पंखा लगाने से गर्मी चली जाएगी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट सोल्यूशन है, वो आपको करना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, यानी कोई रिजेक्शन आ रहा है तो क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं है, वो मुझे ढूंढ कर निकालना है। तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी मुझे देखनी चाहिए। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक इंडस्ट्री में एक तरीका इस्तेमाल होता है, उपयोग में आता है, उसका नाम है क्यूसी स्टोरी स्टाइल। तो क्यूसी स्टोरी स्टाइल क्या होती है कि पहले डिफाइन अ प्रॉब्लम, आपका क्या प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलवेज correct definition of the problem is very important, because if the problem is correctly not defined, then you can start finding a solution of the wrong problem। यानी प्रॉब्लम सही नहीं है और उसका करेक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपका हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने जैसे कहा था कि पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सब लोग बैठकर अपनी अपनी आइडियाज जो है वो देने का प्रयास करेंगे। अगर हम वो आइडियाज देते हैं तो आइडियाज को हमको लिख कर लेना है, और वो आइडियाज में कौन सी आइडियाज ज्यादा रिलीवेंट है वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए भी हमको इशिकावा डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का मदद हम ले सकते हैं, उसका हेल्प हम ले सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कैसे काम करता है, तो जैसे फिश है, फिश, तो फिश का जो मुंह है, माउथ, उसके साइड में पेन लिखना चाहिए कि मुझे गर्मी हो रही है, ये मेरा पेन है। लेकिन क्यों हो रही है, तो उसको डिवाइड द कॉजेस इनटू मैन, मटेरियल, मेथड एंड मशीनरी। डिवाइड द कॉजेस इनटू 4 टाइप्स। पहले मैन, मनुष्य के वजह से है क्या, कोई पंखा चलाने वाला नहीं है इसलिए गर्मी हो रही है क्या, तो ठीक है, वो एक कारण हो सकता है। मटेरियल, आपका पंखा किसी अलग मटेरियल का है इसलिए घूम नहीं रहा, इसलिए आपको तो गर्मी हो रही है क्या, तो मटेरियल का भी एक प्रॉब्लम अगर है तो लिखना है। मेथड, मेथड क्या है कि आपको गर्मी रखना, गर्मी नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या है, तो आपने वहां पर फैन लगा के रखा है, टेबल फैन या सीलिंग फैन, ये मेथड है। और मशीनरी यानी फैन है। मेथड यानी क्या है, मैनुअल आप हवा दे रहे हैं, मशीन के द्वारा आप हवा दे रहे हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में आपको पता चलेगा कि आपका जो पेन है, आपका जो प्रॉब्लम्स है, वो किसके कारण है, यानी मैन, मटेरियल, मेथड, मशीनरी किसके कारण है। वो अगर आपको पता चल गया तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यानी अगर आपने प्रॉब्लम ढूंढ निकालना, डिफाइन द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, बाद में आप उसका वाइवा एनालिसिस कीजिए। वाइवा एनालिसिस यानी ये प्रॉब्लम क्यों है, गर्मी क्यों हो रही है, गर्मी क्यों हो रही है। इस प्रकार से आपको वाई 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 ऐसा 4 या 5 बार अपने को खुद को पूछने का है। तो
उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि खिड़कियां खुली नहीं है इसलिए गर्मी हो रही है, या फैन नहीं है इसलिए गर्मी हो रही है, कूलर नहीं है इसलिए गर्मी हो रही है। तो गर्मी क्यों हो रही है, तो ये आपको पता चलेगा वाइवा एनालिसिस से। तो वाइवा एनालिसिस जो किया जाता है, इसका प्रमुख कारण रहता है, वाइवा एनालिसिस का मेन कारण रहता है करने का कि उससे अपने को रूट कॉज पता चल जाए कि रूट कॉज क्या है। और ये जो इशिकावा डायग्राम या कॉसाइन इफेक्ट डायग्राम हम निकालते हैं, उसका भी हेतु यही है कि रूट कॉज तक पहुंचा जाए कि कौन सा रूट कॉज है और वो मैन, मटेरियल, मेथड, मशीनरी किसके वजह से है। वो अगर हमको पता चल जाता है तो देन गो फॉर द सॉल्यूशन कि हमको क्या क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। अब मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि कुछ कुछ सॉल्यूशन प्रैक्टिकेबल नहीं रहते। जैसे अगर मुझे गर्मी हो रही है और मैं कहूंगा कि ऊपर से शावर लगा दो और मैं पानी में नहाना चाहता हूँ, तो हम दिन भर नहा नहीं सकते। नहा तो हम 1 या 2 बार सकते हैं। तो इसलिए ये जो शावर लगाने का आइडिया है, इससे गर्मी जा सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। हमारे कपड़े भीग जाएंगे और ये कोई समय नहीं है नहाने का। यानी कोई आइडिया रह सकती है, लेकिन वो आइडिया सही भी रह सकती है, लेकिन वो आइडिया प्रैक्टिकेबल है क्या, वो हमको देखना बहुत आवश्यक है। वो फिजिबल है क्या, हम उसको कर सकते हैं क्या, ये भी बहुत आवश्यक है। तो वाइवा एनालिसिस करना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का वो भी हमने करना चाहिए, और हमने वाइवा एनालिसिस से देखना चाहिए, और बाद में हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहिए कि क्या क्या सॉल्यूशंस हम इस इनोवेटिव आइडियाज के लिए दे सकते हैं, या आइडिया पुरानी है लेकिन उसको इनोवेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हमने वो इनोवेटिव सॉल्यूशन खोजकर निकालना है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबल कॉजेस या प्रोबेबल सॉल्यूशंस। तो प्रोबेबल सॉल्यूशंस अगर हमने दे दिए हैं, तो हमको उसका वैलिडेशन करना चाहिए कि हाउ टू वैलिडेट इट। देयर इज अ मेथड ऑफ वैलिडेशन, हमने उसको वैलिडेशन करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर गर्मी मुझे हो रही है और मैंने कहा कि 1 लाख रुपए का एसी लगाकर दीजिए ताकि मुझे जो गर्मी हो रही है वो नहीं होगी। तो 1 लाख रुपए ये बिग अमाउंट है। तो आपकी गर्मी मिटाने के लिए 1 लाख का एक एसी खरीद के लाना, वो भी टेम्पररी रीजन के लिए, तो ये कोई फिजिबल कॉज नहीं है। तो इसलिए ये हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां खोल सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा टेबल फैन या सीलिंग फैन है वो हम लगा सकते हैं। तो वो फिर जो सॉल्यूशन रहेगा वो उसमें से हमको वैलिडेट करना है कि ये सॉल्यूशन हम ले सकते थे, लेकिन हमने इस सॉल्यूशन को नहीं चुना क्योंकि ये बहुत महंगा था। सेकंड सॉल्यूशन हम ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं चुना क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था। थर्ड सॉल्यूशन हम ले सकते थे, लेकिन वो भी कॉस्टली भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो हमें ये भी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकेबल होंगे, कुछ प्रैक्टिकेबल नहीं होंगे, कुछ फिजिबल होंगे और कुछ फिजिबल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमें हर सॉल्यूशन के ऊपर में विचार मंथन करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि क्या ये सही है, क्या ये जायज है, क्या इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जब जवाब आए कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तब हमने देखना चाहिए कि व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। तो वो देखते समय हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, उसमें उसमें मैन पावर कितना इन्वॉल्व है, उसकी जो मशीनरी है वो कैसी है, उसकी जो मेथड है वो काफी पुरानी है या काफी एडवांस है, और उसमें हमको देखना चाहिए कि और बाकी पॉइंट्स भी क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो ये अगर हम देखेंगे तो हम एक अच्छे से अच्छा, नए से नया सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इनोवेटिव आइडियाज एक तो हो सकती है, या फिर आपका सॉल्यूशन इनोवेटिव हो सकता है। अगर आपकी आइडिया इनोवेटिव है तो वो आइडिया किसके बेसिस पर रहनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी आइडिया हमने निकाल ली, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि नीड बेस्ड, कस्टमर की नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कैप्टन कुक नमक का नाम आपने सुना होगा। तो कैप्टन कुक नमक जब था तब नमक नहीं था क्या, नमक था, लेकिन कौन सा था, वो गाय छाप नमक रहता था। तो वो कैसा रहता था, काफी चिपचिपा रहता था, यानी ऑयली रहता था।
तो कैप्टन कुक ने इस प्रॉब्लम को पकड़ा, उसने नीड को हंट किया और उसने सोचा कि हमने क्या करना चाहिए। तो हमने लोगों को एक फ्री फ्लोइंग आयोडाइज नमक देना चाहिए। तो इसलिए उसने जो नमक बनाया वो कैसा था, फ्री फ्लोइंग आयोडाइज, यानी झर से गिरने, ऐसे ऊपर से छोड़ा तो झर से गिरेगा, ऐसा नमक था। तो ऐसा फ्री फ्लोइंग आयोडाइज जो नमक है वो उसने बनाया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक रेड लेबल है, सऊदी अरेबिया में रेड लेबल की बिक्री जो थी वो एकदम से घट गई। तो फिर कंपनी ने सोचा कि क्यों घट गई। तो उस समय रेड लेबल क्या करता था कि ऐसा चाय का एक ऐसा जार देता था और उसको एक हैंडल रहता था, तो वो ऐसा हैंडल वाला जार वो देता था। तो जब रेड लेबल ने सोचा कि हमारी बिक्री क्यों घट गई है, उसने देखा, तो लोगों ने उसमें आंसर दिया कि आपका जो डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट है, यानी आपका जो जार है, उसका जो हैंडल है, तो हमारे पास में अभी 3-4 जार हो गए। तो जब हम अलमीरा में उसको रखने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है, एक कप खड़ा रहता है, बाद में उसका हैंडल रहता है, उसके उतने डिस्टेंस के बाद में फिर दूसरा कप खड़ा रहता है, बाद में उसका हैंडल रहता है, फिर तीसरा कप खड़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये हैंडल की वजह से हमारी बहुत जगह जा रही है, तो हमने ये हैंडल वाला कप नहीं चाहिए हमको, इसलिए उन्होंने चाय लेना ही बंद कर दिया था रेड लेबल से। तो हमें क्या करना है, इनोवेटिव सॉल्यूशन देना है, यानी हैंडल होना चाहिए, बात बरोबर है, लेकिन हम कैसा हैंडल दे सकते हैं, किस प्रकार का हैंडल दे सकते हैं जिसमें उसकी जगह भी कम जाए और कॉस्ट भी हमको कम गिरे। अब मैंने जो उससे पॉइंट आपको बताया कि कॉस्ट का, तो आपके लिए कोई भी काम करते समय ये पिलर्स को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि पी मीन्स प्रोडक्टिविटी, आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि हमको एक ही कार बनानी है, हमको 1 लाख कार अगर बनानी है, तो आपने जो सॉल्यूशन दिया है वो फिजिबल है, प्रैक्टिकेबल है, इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है, ये देखना बहुत बहुत जरूरत है। और यहीं पर इनोवेटिव आइडियाज सामने आती हैं कि जो ऐसा सॉल्यूशन दे। सेकंड चीज ऐसी है कि आपने जो आइडिया दी उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज ऐसी है कि उसकी कॉस्ट, तो आपने जो आइडिया दी वो बहुत ही अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है, तो कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, कोई उसके लिए पैसे भी नहीं देगा। तो पहला आइडिया क्या है, हमारी पहले आप देखना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी बराबर है कि नहीं। प्रोडक्टिविटी बराबर अगर है तो हमने देखना चाहिए कॉस्ट बराबर है कि नहीं है, पी सी। और एक है क्यू फॉर क्वालिटी, हमने देखना चाहिए कि जो हम जिस कॉस्ट में जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बराबर है कि नहीं है। यानी आपकी आइडिया तो बहुत इनोवेटिव है लेकिन जो सॉल्यूशन आपने दिया उसकी क्वालिटी खराब है, तो इसलिए क्या होगा, लोग सॉल्यूशन का उपयोग नहीं करेंगे और प्रॉब्लम जैसे कि वैसा रहेगा। तो इसलिए ऑलवेज चेक पी फॉर प्रोडक्टिविटी बराबर है कि नहीं, क्यू फॉर क्वालिटी बराबर है कि नहीं, सी फॉर कॉस्ट बराबर है कि नहीं, डी फॉर डिलीवरी, तो डिलीवरी उसकी बराबर है कि नहीं, जितने समय में हमको वो सॉल्यूशन लोगों तक पहुंचाना है उतने समय में क्या हम पहुंचा पा रहे हैं या नहीं, तो वो भी हमने देखना बहुत आवश्यक है। तो डी फॉर डिलीवरी। और उसके बाद में हमने देखना चाहिए एस फॉर सेफ्टी। जो हमने सॉल्यूशन दिया है कि पहले जो चाकू था उसकी जो धार थी वो जल्दी ब्लंट हो जाती थी, अब हमने जो चाकू दिया है वो इतना धारदार है कि बहुत बार सब्जी चीरते समय अपने हाथ को भी चीर देता है। तो कितना प्रेशर से अगर हम चमड़े के ऊपर में उसको इस्तेमाल करेंगे तो हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका भी ट्रायल होने की जरूरत है। यानी वो सब्जी तो काटना चाहिए क्योंकि सब्जी काटते समय अलग प्रेशर रहता है, लेकिन उसी प्रेशर से अगर हाथ पर चलाए तो हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसके लिए कितनी एज, कितनी धार हमको देना है, तो ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। सेकंड चीज मैंने आपको कहा इट मस्ट बी क्वालिटी ओरिएंटेड। थर्ड चीज मैंने आपको कहा कि इट्स कॉस्ट शुड बी मिनिमम, यानी ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन दे दिया लेकिन बहुत महंगा है तो कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। और एक बात है कि उसकी डिलीवरी इन टाइम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको कस्टमर को जब ट्रैक्टर देना है और बारिश निकल गई और तब जाके हम उसको ट्रैक्टर दे रहे हैं। तो पी क्यू सी, डी फॉर डिलीवरी, एस फॉर सेफ्टी। तो मैंने कहा कि कितनी धार देनी चाहिए,
तो यूजर किस प्रकार से काटेगा, ये सब बातें ध्यान में रखकर उसका हाथ नहीं कटना चाहिए, कटा तो ज्यादा मेजर कट नहीं होना चाहिए। ये सबको ध्यान ध्यान में रखते हुए घर में सब्जी छीलने का जो चाकू है उसकी धार कितनी रहनी चाहिए, ये भी डिसाइड होना चाहिए। ये भी एक इनोवेटिव मेथड है। हम उसमें एडवर्टाइज में बता सकते हैं कि ये सब्जी तो चीरेगा लेकिन आपका हाथ नहीं। तो ये दिस इज इनोवेटिव आइडिया कि सब्जी तो चीर सकता है लेकिन आपका हाथ नहीं चीरेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो P फॉर प्रोडक्टिविटी, Q फॉर क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, C means cost of the solution, D means delivery of the solution, S means safety of the solution, वो सेफ है कि नहीं या अनसेफ सॉल्यूशन है तो वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और M फॉर मॉरल, जो लोग उसको यूज कर रहे हैं उनका मॉरल ठीक तरीके से है या नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ये हमने ऐसी कुछ कुछ बातें जो है उसको हमने देखना बहुत आवश्यक है। अगर हम कोई स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो मैंने कहा कि उसका नाम सोचिए, उसका नाम आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट होना चाहिए। बाद में वो जो नाम है वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए आपको GoDaddy पर जाना पड़ेगा। बाद में वहां पर जाकर GoDaddy पर जाकर आपको देखना पड़ेगा कि उसके आजू बाजू वाले नाम कुछ सिमिलर नेम्स है क्या, तो उनको भी आपको बुक करना पड़ेगा। बाद में कंपनी सेक्रेटरी की मदद से और सीए की मदद से आपको आपके जो नाम है उसको रजिस्टर करवा के लेना पड़ेगा। आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंपनी स्टार्टअप का फॉर्मूला। बाद में ऑफिस कितना बड़ा लेना है, तो मेरा स्टाफ कितना रहने वाला है, स्टाफ कितना बड़ा रहेगा तो उसका आंसर है मेरा काम कितना बड़ा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका फेसिंग क्या है काम का, तो उसमें फिर कितने लोग लगेंगे ये आपको पता चलेगा। तो ये भी PQC DSM, M फॉर मॉरल, तो जो भी पब्लिक आपका प्रोडक्ट यूज कर रही है तो उनका मॉरल वो यूज करते समय अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बातें मैंने आपको अभी बताई। मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया कि आपकी एक तो आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए या फिर आपका सॉल्यूशन इनोवेटिव होना चाहिए। अगर आपकी आइडिया इनोवेटिव है तो फिर आपका सॉल्यूशन भी इनोवेटिव रहेगा, क्योंकि आइडिया पहले नहीं थी, प्रॉब्लम पहले नहीं था, आपने ढूंढ निकाला है, इसलिए आपका सॉल्यूशन जो भी रहेगा वो इनोवेटिव रहेगा। अगर आपकी आइडिया पुरानी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पुराना है, तो उसके लिए जो आप सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन इनोवेटिव सॉल्यूशन रह सकता है। यानी उससे पहले भी ऐसे सॉल्यूशन थे बाजार में, लेकिन लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, लोगों प्रैक्टिकेबल नहीं लगा, लोगों को फिजिबल नहीं लगा, इसलिए लोगों ने उसे छोड़ दिया। तो ये आपको देखना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जो भी आप ये काम करना चाहते हैं, इनोवेटिव कोई आइडियाज अगर आपको लानी है या पकड़नी है या उसके ऊपर काम करना है, तो गो टू द फैक्ट्रीज, गो टू द इंडस्ट्रीज, आस्क देम फॉर देयर प्रॉब्लम बैंक। आपको उनके प्रॉब्लम बैंक के बारे में पूछना है। उनकी जो प्रॉब्लम बैंक है वो आप देखिए कि कितनी बड़ी है, उसमें कितने प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम में से मैंने कौन सा प्रॉब्लम लेना चाहिए, इसके लिए ABC एनालिसिस रहता है। तो ए एनालिसिस यानी वो प्रॉब्लम जो आपके बस में है, बी एनालिसिस यानी वो प्रॉब्लम जो आप किसी और डिपार्टमेंट की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, और सी यानी वो प्रॉब्लम जिसके लिए आपको मैनेजमेंट के हेल्प की जरूरत है। यानी आपको प्रॉब्लम कहाँ से मिल गया, प्रॉब्लम बैंक से, फिर आपको प्रॉब्लम ढूंढना है ABC एनालिसिस के द्वारा। फिर अगर आपने सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कर लिया तो बाद में फिर आप उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर उसकी योजना बनाइए कि मेरा फैक्ट्री कहाँ रहेगा, मेरा प्रोडक्शन हाउस कहाँ पे रहेगा, मैं कहाँ से रॉ मटेरियल मेरे यहाँ पर आएगा और मैं उसका कैसे इस्तेमाल करके सामने वाले को देने वाला हूँ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग ये टूल का सहारा लेना चाहिए। और ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने क्या कहा कि फॉर्म अ ग्रुप, एक नोटबुक लीजिए, एक ग्रुप बनाइए, प्रॉब्लम सबके सामने रखिए और सबको बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका आपको क्या सॉल्यूशन लगता है। तो ईच एंड एवरी मेंबर जो भी सॉल्यूशन बताएगा उसको अपने को लिख कर लेना है, ना कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि नहीं नहीं ये आपका ठीक नहीं है,
हमने तो यही सोचा है और यही होगा। तो ऐसा हमको खुद को लिमिट नहीं करना है। हमको लोगों को बताना है कि आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए, वो सारे प्रॉब्लम हमको लिख कर लेना है। वो प्रॉब्लम लिख कर लेने के बाद उसका सॉल्यूशन भी लिख कर लेना है। सॉल्यूशन जब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते समय उसको देखिए कि क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है, क्या वो प्रैक्टिकेबल है, क्या वो फिजिबल है। अगर वो प्रैक्टिकेबल है, फिजिबल है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाते हैं, एक तो हमें वाइवा एनालिसिस करना चाहिए कि जिसमें हमको समस्या का कारण क्या है वो पता चल जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि समस्या तो हमको पता चल गई, लेकिन समस्या का अगर हमें समाधान देना है तो समाधान भी इनोवेटिव हो सकता है। और समाधान जो है उसके लिए हमको एबीसी एनालिसिस का हमने जो सहारा लिया था, तो उसके आधार पर हमने प्रॉब्लम ढूंढ के निकाला था। तो हमको समस्या का समाधान ढूंढ के निकालने के लिए हमको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की मदद लेनी है, जिसे हम इशिकावा डायग्राम कहते हैं, या फिर हमें वाइवा एनालिसिस करना है, ताकि हमें भाई 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 ये ऐसा पूछने से हमको पता चलेगा कि वो जो समस्या है वो कौन से एंड में है, वो कौन से एंड में काम कर रही है। तो वो समस्या कौन से मैंने मैन से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है या मेथड से रिलेटेड है, वो जिससे रिलेटेड समस्या है उससे रिलेटेड हमारा सॉल्यूशन होगा। तो जैसे ही हमारा सॉल्यूशन सामने आ जाएगा तो फिर हम वो अलग अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे। अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने के बाद में हमको देखना है क्या वो PQC DSM क्या उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, या ऐसा है कि वो एक बार बना लिया तो बार बार बना नहीं सकते, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, बाद में क्यू उसमें क्वालिटी कैसी है जो सॉल्यूशन दे रहे हैं। PQC C यानी कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कैसी है, कितना बहुत महंगा है क्या हमारा प्रोडक्ट, वो महंगा है क्या हमारा सॉल्यूशन, वो भी हमको देखना है। PQC D फॉर डिलीवरी, हमारा एंड कस्टमर तक कितने समय में प्रोडक्ट जाने वाला है, वो कैसे जा सकता है, इसके लिए हमने क्या सोचा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S मीन्स सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स कि हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया लेकिन वो इजी टू यूज नहीं है, वो कस्टमर के लिए हार्मफुल है, उसमें हजार्ड इन्वॉल्व है। जैसे कोई बर्थडे का केक हमने बनाया और उसकी कैंडल बनाई, तो बहुत बार क्या होता है कि वो कैंडल जाकर फूटती है। अभी कल पेपर में एक न्यूज आई कि कैंडल फूटने से जो छोटी बच्ची थी जिसका बर्थडे था, तो वो उसका मुंह जो है वो जल गया। तो यानी हमने सॉल्यूशन दे दिया कि ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन वो सेफ है क्या, तो सेफ नहीं है। बहुत सारे चाइनीज खिलौने सेफ है क्या, सेफ नहीं है। तो ऐसा जब रहता है तो वो सॉल्यूशन फिर चलता नहीं मार्केट में। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि PQC DS और M, तो मोरल कैसा है लोगों का उसको यूज करते समय, वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको इस देखा ये प्रकार क्या से बोल सॉल्यूशन हमको इस प्रकार से सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालना है। और जिस प्रकार से हमारा अगर सॉल्यूशन आता है तो हमारा प्रोबेबल मार्केट एरिया क्या होने वाला है, हमारे कस्टमर कौन रहने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर एजुकेशनल प्रोडक्ट है तो हमको ये देखना है कि हमारा जो कस्टमर है क्या वो कॉलेजेस है, क्या हमारे कस्टमर ट्यूशंस है, क्या हमारे कस्टमर डीम यूनिवर्सिटी है, क्या हमारे कस्टमर यूनिवर्सिटी है, क्या हमारे कस्टमर स्कूल्स है। तो हमारे कस्टमर कौन है, क्या हमारे कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, क्या हमारे कस्टमर बैंक्स है। तो हमारे कस्टमर कौन है वो ढूंढ के निकालना बहुत बहुत आवश्यक है और उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। नंबर ऑफ मार्केटिंग पीपल, जो भी एक आदमी कितना काम कर सकता है, मैं कितने लोगों का पेमेंट दे सकता हूँ, अगर 3 महीने तक इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं लाया तो मैं इनका सैलरी बियर कर सकता हूँ या नहीं। तो ये सब बातें भी हमें ढूंढना है और हमें मैन टू मैन कांटेक्ट करना, यही हमारा माध्यम है कि हमें फिर अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटल माध्यम का भी प्रयोग हमको करना है, तो वो भी हमको देखना चाहिए। तो इस प्रकार से मार्केटिंग का भी योजना हमने बनाना चाहिए। तो जहाँ पर हमारे लोग हैं वहां पर उनका वर्किंग बराबर रहना चाहिए, उन्होंने टाइम से आना चाहिए, टाइम से जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने
बायोमेट्रिक लगाया है क्या, कोई एचआर को हमने नियुक्त किया है क्या, कोई एचआर हमारा सब कुछ देखने वाला है क्या, कोई अकाउंट्स वाला है क्या, जो हमारे सारे जो ट्रांजैक्शंस है उसको मॉनिटर करेगा, उसको ठीक तरीके से लिखेगा। तो ये भी देखना बहुत आवश्यक है। तो स्टार्टअप्स में क्या है, इनोवेटिव आइडिया तो आप मिल जाएंगे आपको, जैसे कैप्टन कुक नमक का मैंने उदाहरण दिया। पहले फोन में कैमरा ये अट्रैक्टिव क्वालिटी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जो फोन्स आए उसमें हर फोन में कैमरा था। इसमें इट मीन्स दैट फोन इज नाउ विथ कैमरा, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा इनोवेटिव सॉल्यूशन आज इनोवेटिव रहता है, लेकिन कल वो पुराना हो जाता है, कोई नया इनोवेशन आ जाता है। तो हमको नया नया सॉल्यूशन, नए नए प्रॉब्लम ढूंढकर उनके नए नए सॉल्यूशन ढूंढने की आदत रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम स्टार्टअप चालू करते हैं तो लोगों का उसमें काफी रिस्पांस मिल सकता है, और हमारा जो स्टार्टअप है वो अच्छा चल सकता है, काफी अच्छा रेवेन्यू उससे कलेक्ट हो सकता है। तो मुझे आज के इस विषय में ये रखना था, तो मैंने आपके सामने में हाउ टू कन्वर्ट इनोवेशन इनटू इनोवेटिव स्टार्टअप्स, ये मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपके बीच में कोई क्वेश्चंस होंगे, आपको कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। करके पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है Yes, sir. तो आप पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। मैंने वैसे आपको बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बताया है, जिसके कारण आप अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सोसाइटी में भी जो अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स है उनको भी आपको लिखना है, उनके ऊपर भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, उनके ऊपर भी आपको इशिकावा डायग्राम का यूज करना है, उनके ऊपर भी आपको हाइवा एनालिसिस का यूज करना है, उनके ऊपर भी आपको वैलिडेशन करना है अलग अलग सॉल्यूशंस का। और जो फिजिबल, प्रैक्टिकेबल, इम्प्लीमेंटेबल हो, उसको ही आपको चुनना है आपका सॉल्यूशन करके, और उसको लेकर जाकर फिर मैंने आपको कहा कि वो सॉल्यूशन के लिए चेक कीजिए कि वो प्रोडक्टिव है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी कॉस्ट कैसी है, वो एंड कस्टमर तक कितने समय में मिल सकता है, उसकी डिलीवरी कैसी है, वो सेफ है कि नहीं एंड कस्टमर के लिए, तो वो भी आपको देखना है, और वो कस्टमर का मॉरल भी आपको देखना है। तो ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप भी सोच सकते हैं कि क्या हमने नौकरी के पीछे जाना चाहिए, या दो चार लोग हम खास खास दोस्त है वो मिलाकर कोई नया स्टार्टअप हम चालू कर सकते हैं। कोई मैकेनिकल स्टार्टअप है, कोई सिविल स्टार्टअप है, या हम क्या किस प्रकार का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत सारे हैं, देयर इज अ नीड ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जब प्रॉब्लम्स, अगर आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसमें अगर आप लेते हैं तो उसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है तो उसके लिए सॉल्यूशन भी आपका इनोवेटिव रहने ही वाला है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। सर का जो सेशन था आज का, ये कन्वर्टिंग इनोवेशन इनटू अ स्टार्टअप, बेसिकली होता यह है कि इंडस्ट्री में या कहीं पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके घर के आसपास आपके प्रॉब्लम होते हैं, आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके कोई इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली चीज जो होती है वो है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सर ने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम इंडस्ट्री में आपको रेडीमेड भी मिल सकती है, या कभी आप जैसे आप अभी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो कई कंपनियों में, तो वहां पर आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने अगर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, आप 1 महीना या 1.5 महीना वहां पे काम कर रहे हो, काम करते समय आपको किसी प्रोसेस में या किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम अगर नजर आती है, या
कुछ सिस्टम में आपको ऐसा लगता है कि अगर इस चीज को मैंने कुछ इम्प्रूव किया तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी या मशीन की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ेगा या कॉस्ट कम होगा या सेफ्टी बढ़ेगी, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। तो वो होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सर ने जैसे आपको बताया कि प्रॉब्लम बैंक भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम बैंक होते भी है, तो इंडस्ट्री में आपको रेडीमेड प्रॉब्लम भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप उस सॉल्यूशन को डेवलप कर रहे हो, आप सॉल्यूशन किस तरह से डेवलप कर रहे हो वो आपको देखना है। आपने एक कोई प्रोडक्ट अगर बनाया है तो उसके बाद में उस प्रोडक्ट को हमको इंडस्ट्री से बाहर लेके जाना है। इसी मैक्सिमम बहुत सारा क्या होता है हमारे इंस्टीट्यूट में या सभी इंस्टीट्यूट में, बहुत एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम यह है कि प्रोजेक्ट तो हर कोई बनाता है और बच्चों के पास आइडियाज भी बहुत सारी होती है। हमें ये करना है कि ये प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाना है ताकि वो एक कंपनी में डेवलप हो जाए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट मार्केट के लायक रहा, तो आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सो आप खुद का स्टार्टअप उस प्रोडक्ट की वजह से शुरू कर सकते हो। सो हमारा ये जो आईआईसी का कंसेप्ट है, हमारा आईआईसी का जो वर्क है, वो इसी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने वर्किंग शुरू किया गया है। और उसी से रिलेटेड बेसिक आपको जानकारी देने के लिए आपका आज का हमारा एक पहला सेशन हमने रखा था। तो सर ने बहुत ही अच्छा आपको गाइडेंस किया कि एक प्रॉब्लम को किस तरह से आइडिएशन लेवल तक लेके जाना है, आइडिया कैसे डेवलप करनी है और उस सॉल्यूशन किस तरह से प्रोवाइड करना है। तो उसमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, क्या प्रोसीजर से आप जाएंगे, क्या आपको करना चाहिए, वो हमने देखा। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका आइडिया अगर आपके पास है तो उस आइडिया को किसी ने चुराना नहीं चाहिए। वो भी बहुत जरूरी है कि आपको आपका आइडिया आपके ही पास रहे और आप उसको आगे भी यूज कर पाए, आप उसका पूरा फायदा उठा पाए। तो उसी से रिलेटेड होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमारा आज का अगला सेशन होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से सेव करना है, पेटेंट किस तरह से अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या किया जाता है, इसके ऊपर हमारा अगला सेशन होगा। इस सेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। नाउ आई इनवाइट अवर प्रोफेसर मोहन सिरभाते सर टू प्लीज कंक्लूड दिस सेशन। Guys, if you have any query, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप कमेंट में लिखिए, मैं आपका क्वेश्चन रेज करूंगा। ओके सर, जस्ट सेकंड, एक क्वेश्चन आया है एहसान अंसारी की तरफ से कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मेक्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। किस तरीके का पर्सन, किस प्रकार का व्यक्ति एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो सबसे पहले है कि एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स। मेरे घर में किसी ने मेरे घर में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है करके मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। मेरे रिश्तेदारों में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है करके मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। और मेरे पास में ज्यादा पैसा है या ज्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास में पिताजी का या मेरे भाइयों का बैकिंग है या नहीं है, ये सारा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, इस प्रकार का विचार नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स। सेकंड थिंग इज अल्टरनेटिव थिंकिंग। जब भी आप स्टाफ हो जाए, आप देखिए कि किस प्रकार से रेवेन्यूज आएंगे, आप देखिए कि आपका सेल कैसे बढ़ेगा। तो एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स, जहां जहां पर आप स्टाफ होते हैं वहां पर आपने एक्सेप्टिंग नो लिमिट्स ये करना चाहिए। और तीसरी बात ऐसी है कि आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, हार्ड वर्क रहना चाहिए, स्मार्ट वर्क रहना चाहिए, लीडरशिप आपका अच्छा रहना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपकी अच्छी रहनी चाहिए और पेशेंस भी आप में रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर में एक सेशन भी हो सकता है कि क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये सेशन भी हो सकता है। तो आपने पूछा तो ऐसी ये सारी बातें उसमें हो सकती है कि जो व्यक्ति अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाए। ठीक है।
हाउ टू रेज फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप अगर सरकारी ऑफिस में जाएंगे, बैंक्स के पास में भी जाएंगे तो उनके पास में जैसे अभी मुद्रा लोन, तो मुद्रा लोन की योजना है या पंतप्रधान रोजगार योजना जो रहती है वो रहती है। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो आप बैंक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप के लिए कौन कौन लोन देता है। स्टार्टअप के लिए बहुत सारे लोग, एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है वहाँ उसका जो ऑफिस है सेमिनरी हिल की तरफ, आप एक बार जाकर वहां पर मिलकर आइए उनको। तो कौन से उद्योग करने लायक है वो भी आपको बताएंगे और कौन से इंस्टीट्यूशंस आपको फंड दे सकते हैं वो भी वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। Another question: how can we start by taking loan and how to get license? नहीं, ये तो क्या है, हाउ टू गेट लाइसेंस, ये जो डॉक्यूमेंटरी पार्ट है ये आप अपना कंपनी सेक्रेटरी के पास अगर जाएंगे ना, वो सारे डॉक्यूमेंटरी पार्ट आपको सिंगल हैंडेडली वही करा के देता है। और बैंक रिलेटेड जो भी काम है वो सारे के सारे आपका सीए करा के देगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी एक आदमी है जो आपके सारे सवालों का जवाब वही दे देगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन वही करा के दे देगा। Now I request Mohan Shirpati sir to please give a vote of thanks. दोस्तों नमस्ते। पहली सबसे बड़ी महत्व की बात है कि हमारे साथ में अमोल जी है। अमोल जी शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं अमोल जी को बहुत दिनों से पहचानता हूँ। जब मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में था, वर्धा में प्रिंसिपल था। ही इज ए वेरी हार्डकोर टेक्नोक्रेट्स एंड ऑलवेज अवेलेबल टू एनीवन टू गिव द गाइडेंस। सो ये इनका स्वभाव का विशेषता है। मैंने इनके बारे में सुना था, इनको सुना भी है मैंने। आज सर ने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सभी के सामने कुछ चीजें रखी। यही चीजों को कॉम्प्लिकेट भी किया जाता है, मगर सर ने इतने आसानी से रखा कि हमारे सभी विद्यार्थी है इनको ये समझ में आया है। तो जो सर ने बताया वो तो आपके समझ में आया, उसके ऊपर स्टडी भी करना है। और ये मत सोचिए कि सर का एक लेक्चर हो गया इसका मतलब सर दोबारा हमारे पास साथ जुड़े नहीं रहेंगे। सर डेफिनेटली जुड़े रहेंगे। हम में से कुछ लड़के लोग, विद्यार्थी लोग जो भी करना चाहते हैं इसमें कुछ, दोज वांट टू कम फॉरवर्ड, डेफिनेटली दे शुड कम फॉरवर्ड। इनको और डिटेल जाने के लिए हमारे पास सुविधा है आईआईसी सेल में। हम ऐसी सीरीज बनाएंगे जैसे सर ने बनाया था कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी एक लेक्चर भी हो सकता है। डेफिनेटली हमें प्लानिंग में वैसे लेक्चर हमारे साथ है, हम करने वाले हैं। अभी तो ऐसा है कि सोच आने दो, अपने पास जो आइडिया है वो आइडिया, इनोवेटिव आइडिया कैसी हो, एक आइडिया होंगी, दूसरी आएंगी, तीसरी आएंगी, और वो आइडिया सही ढंग से जो सर ने जो क्राइटेरिया बताया EQFCD का, वो लगाते हुए हमें ये देखना है कि वो उसको, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। हमारे मन में जो चीज आएंगी वही प्रोडक्ट बनेगा ऐसा नहीं। हमें थोड़े से मेहनत करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, सोच देनी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी, वो जाके उसमें से सोल्यूशन बाहर निकलेगा। और वो भी सोल्यूशन जब आप देखने जाओगे कि देखेंगे अरे मेरे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो इसमें क्या इनोवेटिव है, तो हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत के साथ रहोगे तो आगे सोल्यूशन पाए जाएंगे। गवर्नमेंट की नौकरियां तो वैसे कम हो रही, प्राइवेट वालों का भी रिक्रूटमेंट कम हो रहे हैं, बहुत सारे जगह से ले ऑफ हो रहे हैं। इसमें एक ही सोल्यूशन है कि हमारा खुद का कुछ करे। अकेला नौकरी करने के बजाय 4 लोगों को नौकरी देने की हमें ताकत होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, वो हमने करना चाहिए। आज पहला लेक्चर सर ने बहुत अच्छा चीजें से बताया और हम इसके और ग्रो करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म है, सर को और हम जोड़ेंगे। अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, भविष्य में 2-3 महीने के बाद जब 1 महीने के बाद जब कॉलेज शुरू हो जाएगा 17 तारीख के बाद, और 1 महीने के बाद फिर ऑफलाइन सर को और कॉलेज बुलाएंगे, उसमें से और बच्चों को रूबरू कराएंगे। और सर आपने आज जो बताया, हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने सही ढंग में, सही भाषा में सबको बताया। और मैं चाहता हूं कि बच्चे इसका लुत्फ उठाए, फायदा उठाए और आगे आए। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर, अमोल पुसतकर सर, ऑन बिहाफ ऑफ NIT Polytechnic, IISc SAIL management and that, and hope that we will be remain in connect with each other. Thank you very much sir. थैंक यू सर, मोहन सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, आपने इतना पेशेंटली सुना। नेक्स्ट सेशन जो है आपका 1:45 1:45 को स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज इस सेशन का लिंक सेम रहेगी,
ठीक है, 1:45 को आप लोग सभी लोग इस सेशन को फिर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोग लेफ्ट कर सकते हो।